محدثین کو کہتے ہیں کہ محدث اور اہل حدیث اور اصحاب حدیث اور اہل اثر یہ چاروں الفاظ مرادف ہیں. جو فن حدیث کی خدمت کر رہا ہے جو محدث ہے وہی اہل حدیث ہے. یہ جو اصطلاح آج چلی ہے کہ صاحب کی اصلاح بھی کرنا نہ آتا ہے واضح کرنا چاہتا ہوں نا. محدث وہ ہو گیا ہے جو فن حدیث کی خدمت کرتا ہے. میری بات ہو محدثین جو محدثین گزرے ہیں جنہوں نے اپنی کتاب لکھی ہے جنہوں نے اپنے اسلام کی حدیثیں بیان کی اپنے اسلام کی حدیثیں بیان کی ان سے محدث کرتے اور باقی مسلم بخاری وغیرہ یہ ہے محدث. ان محدثین کے کسی کا حوالہ دے. آپ نے آج تک کبھی یہ خیال کیا کہ میاں نذیر خان کو محدث میں کیوں لکھتے ہیں؟ انہوں نے حدیث کی کتاب جا کر کا قاعدہ بھی نہیں لکھا. نہیں انہوں نے جو ہے وہ حدیث ہے اپنی ان کا سب نہیں ہے. اچھا انہوں نے سند کہاں سے لیا ہے؟ اپنے ساتھ سے اور ان کے ساتھ کے لیے ایک نہیں ہے کتابوں کے ساتھ ہنسیوں سے سند لی کا نام کسی سے بھی اس کو چھوڑیے بھائی تھا یا نہیں تھا یہ مسئلہ کام دیکھ یا اسے سب مجبور دینا پڑے گا وہ سے باہر جائے آپ اصل بات پہ آ جائے. مضمون تو یہی ہے نا آپ کو آیت المحکمہ سے سنت القائمہ آپ نے کیا لیا ان کے کہنا وہ سنت جو جاری ہے مطلب یہ لیا کہ اللہ کے نبی نے ترتیب رکھی ہے. آپ نے یہ بیان آپ نے نہیں کہا کہ قرآن حدیث کے بغیر قرآن دیکھو یا قرآن کے بغیر حدیث کے لیے آپ اگر مجھے وقت دیں تو میں دوسری ڈگری پڑھتا ہوں. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حضور نے پوچھا کہ معاذ کس طرح فیصلہ کرو گے؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ کتاب اللہ ہے اللہ کی کتاب. اس کے بعد دوسرے نمبر پر آپ نے فرمایا پھر علم تجد بھی ہے پہلے قرآن ہے پہلے حدیث معاذ میں علم تجد بھی ہے اگر قرآن میں مسئلہ نہ ملے پھر میں عرض کیا کہ حضرت سنت رسول سے اور کسی جگہ حدیث کا لگن ہے یہ واضح کر دیتا ہوں سب کے سامنے. حضور نے کبھی یہ نہیں فرمایا تم جو حدیث کو تم میری حدیث کا مضبوط کر رہے کیونکہ حدیث اور سنت میں کیونکہ حدیث بیان کر رہا ہوں اس کو واضح کرتا ہوں. حدیث اور سنت میں واضح فرق ہے. میری بات سنیے حدیث اور سنت میں واضح فرق ہے. حدیث نہیں میں تو ترتیب بتا رہا ہوں. میں نے جو بات نہیں ہوگا موضوع میں بات میری بات تو پوری ہونے میں دینا. بات تو یہیں پر چلی ہے کہ میں نے ایک فکرہ لکھا ہے وہاں کے دلائل جب ہم بیان کریں گے سب سے پہلے خدا کی کتاب سے ہوگا پھر اللہ کے نبی کی سنت سے ہم بیان کریں گے. آپ فرماتے ہیں کہ یہ ترتیب میں نہیں مانتا میری یکتا حجت ہے. میں کہتا ہوں کہ آپ کی یہ بات اللہ کے نبی کے خلاف ہے. اللہ کے پیغمبر نے حضرت معاذ نے فرمایا کہ سب سے پہلے جو کتاب اللہ ہے اس کے بعد اگر اس میں مسئلہ نہ ملے پھر حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے خود سے پوچھا تو انہوں نے حل کیا کہ سنت رسول اللہ ہے. اگر اس کے بعد نہ ملے تو فرمایا کہ آج پہلے تو گہرائی اب اس کی تصدیق حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرماتے ہیں الحمدللہ اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے میرے صحابی کے منہ سے ایسی بات کہلوا دی ہے کہ میں سر سے پاؤں تک ٹھنڈا ہو گیا میں راضی ہو گیا ہوں. اللہ کا رسول اس ترتیب پر راضی ہے. اللہ کا رسول اس ترتیب پر راضی ہے. آپ بھی اللہ کے رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں تو آپ کو یہ ترتیب ماننی چاہیے. آپ آپ نے جو روایت کی جائے بتائیے ابھی صحیح ہے بالکل صحیح ہے. مسلم ابو داؤد حاکم کسی نے صحیح کہا ہے بتاؤ کسی نے صحیح کہا ہے اس سے بہت سے محدثین نے علامہ ابن قیم نے اسے صحیح کہا ہے. علامہ ابن کثیر شافعی نے کہا ہے حاضہ حدیث. اچھا سنیں نا میں کہتا ہوں ابن قیم محدث نے اس کو صحیح کہا ہے. علامہ ابن کثیر نے صحیح کیا کہا ہے اسنادہ جید غیر مقلد عالم علامہ شوکانی نے حدیث صالح
मैंने 3 मुहद्दिसीन से नहीं आप ये मत नहीं आप सुनिए बात सुनो मैं भी बात कर रहा हूँ। मैं तो मुतालबा चाहता हूँ उसका जवाब नहीं है मैंने आपका मुतालबा नहीं आप नहीं समझा सुनने पहले आप ऐसा ना करें, ये तो मैं शोर नहीं करता आपकी बात। देखिए इन्होंने मुझे कहा कि आप किसी मुहद्दिस से ये साबित कर सुने ना, मैंने 3 मुहद्दिसीन अल्लामा इब्ने क़य्यम, इब्ने कसीर और मशहूर गैर मुक़ल्लिद अल्लामा शफ़ानी से साबित किया। मैं भी आपको कहता हूँ मुझे अबू दाऊद ने इस हदीस को नकल करके सबूत किया है, और अबू दाऊद जो क्या कितना का रावी है वो जहाँ सबूत करे वो हुज्जत होती है। मैंने 4 मुहद्दिसीन से तस्दीक साबित कर दी, आप सिर्फ एक मुहद्दिस से इसकी तस्दीक बता देंगे। बताएं जी, बताएं। इमाम बज़ार ने इसको गैर सही कहा है जी, इमाम बज़ार ने इसको गैर सही कहा है। करें मेरे पास इतने कई मुहद्दिसीन हैं, उन्होंने सबसे पहले बड़ी बात इमाम संग निकाले, उसके अंदर आई मजबूर है। आप खुद अबू दाऊद निकाले, आपका अबू दाऊद है निकाले, मुझे याद है करो बात बनी राबी आता है। तस्लीम करता हूँ जब मजबूर है उसके माने अल्लामा इब्ने तैमिया ने और इब्ने क़य्यम ने लिखा है, आपको सही हदीस की सिर्फ एक तारीफ मालूम है, वो लिखते हैं सही हो मा तलक़्क़त उम्मत बिल क़बूल व इन लम यकुन लहु सनदुन सहीहुन। रावी में भी ये है, उन्होंने फरमाया है कि पूरी उम्मत है इज्तिहाद की हुज्जत की कायल है, पूरी उम्मत की हदीस के पीछे है, मजबूर है, उसकी रिवायत सही नहीं होगी, न हसन होगी न सही उसकी रवायत मजबूर रावी की सही नहीं होगी। मैंने सही की तारीफ एक और बयान की है आपको, नहीं है उसूल हदीस की नहीं बताई है। मैं ये आप वक्त जाया कर रहे हैं, मैं तो कहता हूँ कि आप जिस तरह भी करके चाहते हैं ना, आप खरीदने और मुनाज़रा शुरू करें। अल्लाह के अबू दाऊद ने सबूत दिया है, 4 मुहद्दिसीन ने जिसे सही कहा है, आप पहले बैठ से ही बावजूद इस दावे के कि मैं अहले हदीस हूँ, आपने बैठ के हदीस का इजहार कर बोला ना जी। आपके इसके लिए भी आप वक्त एक इंसान को निकाल कर ये है मुसलसलात अपना कलाम जारी रखे, मुसलसलात अपना कलाम जारी रखे, सवाल का जवाब दीजिए, सवाल का जवाब दीजिए। आपसे कह रहा हूँ इस बात पर हम मुत्तफिक हो गए कि बात बनेगा, ये है रावी गैर मारूफ, जो गैर मारूफ रावी है उसूल हदीस के यहाँ से वो सही नहीं हो सकती जब तक उस रावी को सिक्काना साबित किया जाए, उसको मालूम किया जाए, फिर उसकी सिकाहत मालूम हो जाए। यहाँ सिकाहत तो क्या, यहाँ उसका नाम भी मालूम नहीं, नसब भी मालूम है कहूँ, पहले उसको साबित करे। मजबूर रावी की रिवायत आपने पेश करेंगे, पहले फर्ज किया काम सही माने, सही इस तरह कहने से नहीं हो सकता है। बनी राफे जो है ये नस्ल नहीं है, राफे की औलाद में और औलाद में तो कई बनी आदम हम नहीं लेना क्या है, बनी आदम इसीलिए तो तुम्हारा अलग लगता है कि मैं बनी आदम मेरा सब होगा। आप बताएं कि मुझे नाम है, किसका बेटा है, किसका पोता है, क्या कम है, किसका है, सही है, सबूत है, तो मैंने बात साफ इसके बगैर आगे नहीं जाएगी। पहले ये बातें बताओ, या इस रिवायत से आप खाओ या इस रावी का नाम खाओ। इस रावी के मतलब तो मैं ये अर्ज करता हूँ कि ये चूंकि ताबीन में से सच है हम नहीं मानते, तो ठीक है, आप उसका नाम लें, उनको से मैं ये कह रहा हूँ कि सनद में अगर जहालत मौजूद हो, मुहद्दिसीन का दूसरा कहता जहालत के इत्तिफाक का ये होता है, सनद की उसका इंजबार का तरीका ये होता है सही हो मा तलक़्क़तहुल उम्मत बिल क़बूल व इन लम यकुन लहु इस्नादुन सहीहुन, ये तजर्बा रावी में मौजूद है। इस रवायत पर देखिए आप कहते हैं कि एक आदमी उसे सिका कहे, सारी उम्मत जिस पर अमल करती चली आ रही है, सारी उम्मत का ये ताई 2 किस्म की होती है, ताई 2 किस्म का उसका जवाब लेना, ताई 2 किस्म की होती है। एक ताई होती है जवाब, मैं जो पूछता हूँ उसका जवाब जवाब देना है, सुनना नहीं चाहते जवाब ताई 2 तरह से होती है। मैंने साहब ले जाऊँ है तो
सही मैं सही दो तरह से होती है कि एक आदमी ये उठ कर कहते हैं कि जी ये फलां शख्स है, एक ये सारे उम्मत उस पर अमल करे। असूल हदीस में क्या असूल हदीस में ये नहीं है जो मैंने तारीफ पढ़ी आप इनकार करके ले गए मेरा नुकबा जो है वो तो एक मुकन्नत शाफी की किताब है, आपको तो पहले हक नहीं उसे उठाने का। चलो उसूल तो उसी किताब में जी उसी किताब उसूल हमारी तो सारी मुकल्लदीन की हम तो मानेंगे ना। तदरीब आप ये सिर्फ शोर होगा और कुछ हम आप हमारे भाई है, न शोर की बात है, न तासुब की बात है, न देश की बात है। मोहब्बत से जिसकी होनी चाहिए, सादे नहीं निकाल मौजूद होनी चाहिए। अपनी राफे का नाम बताओ, उसको ठीक कहीं से न बताओ ये बात यही रुकेगा। ठीक है मैंने बात वादे कर दी है, मतलब मैं वो बेचता हूँ। इससे बढ़कर क्या हो सकता है, आज तक इस पर अमल करते आ रहे हैं। हदीस सही की ये तारीफ नहीं है जो मैं पढ़ रहा हूँ बार बार, आप क्यों तकलीफ मेरी नहीं करते। आज सही हो मातलम का फिर उम्मत तो बिल्कुल कबूल है, ये बात अल्लाह अपने मकाम पे है, ये बात है आप मान गए नहीं बोला ना, ये बात माने इसी तारीफ के मुताबिक ये हदीस सही है। जिन्होंने इसे सही कहा है इब्ने कय्यम ने भी इसी कानून पर सही कहा है जनाब। और ये वो कानून है जिसको इमाम बुखारी भी मान चुके हैं, ला वसीयत ले वारिसिन हदीस बिल्कुल नहीं, ला वसीयत ले वारिसिन की कोई सन दुनिया में सही नहीं मौजूद है। कौन है पेश करें वो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह मुखातिर मान गए हैं खुदा की किताब। ये कुरान जो है इसकी आयत को मखसूस कर लिया उन्होंने। ये जो हदीस है कि पानी रंग मजा तब्दील हो जाए तो वो पानी कोई सनद दुनिया में सही नहीं है, इसकी कोई वक्त मुकर्रर मैं तो कहता हूँ वक्त मुकर्रर आयत में मैंने दो आप इस बात पर जिद कर रहे हैं कि आप वो हदीसें पढ़ेंगे जो कुरान के खिलाफ होगी। मैं कह रहा हूँ कि आप वो हदीसें पढ़े जो कुरान कोई सही हाँ तो फिर अगर इस पर आपको इत्तेफाक है तो झगड़ा करने की जरूरत क्या है। कोई झगड़ा नहीं, कोई झगड़ा आपके दिल में ये है कि कुछ हदीसें खिलाफ है नहीं अगर नहीं तो की जरूरत नहीं है पहले किताबुल्लाह उसके बाद हदीस रसूलुल्लाह बस ये बहुत झगड़ा करा तो बस लेकिन इसकी जब बातें होनी चाहिए कि सही हदीस से जारी है सही नहीं बात सही है सही होगी। और सही की दो तारीखें मैंने अर्ज कर दी, वो भी सही है कि सही हो और वो भी सही है जिस पर अमल हो। सही हदीस के लिए उसूल हदीस की किताबें उसूल फिक़ह के सामने आ सकती है या नहीं आ सकती है। इसी तरह कवायद के लिहाज से उसूल फिक़ह की किताबें आप मानेंगे ठीक, तो उसी किताब उसूल फिक़ह की आपके हमने पढ़ा क्योंकि मैं हनफी हूँ। जो हमारी किताबों में जो कौल मुफ्ता वही कौल है इस पर हमारे यहाँ फतवा है जैसे उसूल की बात में मैं असूल की असूल का क्या मतलब आपका जो कवायद है उसूल में वो किताब और सुन्नत ऐसी हुज्जत है ना जो दोनों करीब मान रहे हैं ठीक है ना। हदीस बोलेंगे जो आप पिता से पेश करेंगे वो सिर्फ इल्जाम होगा, आपका दिल तो मतलब आप तो समझ नहीं समझे। इल्जामी हुज्जत में सिर्फ पिता हनफी का मुताबिक कौल आप पेश कर सकते हैं। और मैं कहता हूँ किताबें कौन सी आपके सामने होती है असूल फिक़ह की किताबें यही जो हमारी राय है नाम मतलब शादी है नूरनवार है सामने लेकिन इन सब किताबों में शर्त ये है कि जो मुफ्त का कौन है वो आप पेश करेंगे और किसी किताब से उसी के अंदर इख्तिलाफ होगा बयान होगा उसी के हदीस भी है तो आप हदीस सियासिता मानेंगे ना। लेकिन अब मैं फिर बात करूंगा आपको नहीं सही फैसले आप तहसील तो करेंगे ना सही तो वो आप वहाँ बयान होगा जहाँ लेकिन जहाँ दो कौल नहीं तो ठीक है और दो कौल नहीं एक बात और वादे कर दूँ मैं
दो कौल ना हो, कौल एक ही हो, लेकिन उस पर जिसमें फतवा नबी हो, कुछ साल कौल हो, तो वो तो उतना नहीं है ना। मैंने बात ये बताता की है, अब देखो हदीसों में इस्तार ना भी हो, लेकिन एक हदीस सिखान भी नहीं है या कुछ भी नहीं है, तो वो तो उतना नहीं होगी। ऐसी हालत में 7 कौल कोई किसी पिता की किताब से आप एक नहीं कर सकते। सिर्फ वो कौल जो मुफ्ताबी कौल हो, जैसे हदीस के साथ आप कोई भी करता जाए समझ गया, इसी तरह मुफ्ताबी कौल। आप हमारे लिए कौल मुफ्ताबी नहीं है। ये है कि अगर उस कौल की जो मिसाल उन्होंने जिक्र की है वो हमारे मज़हब हनफी जो है सीता की किताबों के मुफ्ताबी कौल के खिलाफ होगी, तो मैं कहूंगा कि ये गैर मुफ्ताबी कौल है। अगर हमारे मज़हब की मुफ्ताबी किताबों के माफक होगी, तो मैं कहूँगा ये मुफ्ताबी कौल। उसी से बनी हुई है, उसी से बना जी बनाया, उसी से असूल सीता के मतलब क्योंकि ये बात वादे है कि इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह के बाद उनके इन असूलों को जमा किया गया है, तो ना ये सारे हदमी हैं। असल हमारा मतलब जो है वो ज़ाहिर रिवायत है, मुफ्ता रिवायत मक्का ही है जी, वो तो मक्का ही है। हाँ जी, लेकिन कवायद जो उसूल किताब कवायद का यही है ना, सुन्नत इज्मा के मुताबिक कायदे पे ठीक है, मैं अब कहता हूँ कायदे के लिए आप क्या करें। लेकिन कोई कायदा अगर ऐसा आप पेश करे खास कायदा जिसके मदद का मुफ्ताबी ही कौल राय होता हो, तो वो हम नहीं मानेंगे। आप क्योंकि असल तो मदद है, असल मदद जो है वो मुफ्ताबी हमारा मदद है ना, हनफी मदद। उसके खिलाफ आपका जो कायदा तो दो अच्छी बात कह रहा हूँ, मुफ्ताबी कौल के खिलाफ आप दुनिया की किसी किताब से पेश करें, उसको आप असूल फिक़ह का नाम दें, तो आप उसके सामने किताबों का नाम दें। मैंने इनसे सवाल आप देखता हूँ, उसके बाद दो क्वेश्चन कैद हो गए ना, आपको 10 मिनट दे दो, आपको 25 रुपये कैद, आपको 25 रुपये बैग सवाल आप हो गए।